Is it audible? Good afternoon, Hello, sir. is it audible? Yes, sir. Hello, am I audible? Yes, sir. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Hello, am I audible? अच्छा, हम्म, यहाँ से पढ़ाना है बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर. ओके, अच्छा यहाँ से पढ़ाना है ना मैम, बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर. ओके, okay, so we are going with unit 5 employees welfare. So today we're going to discuss the benefits of employee welfare. What are these? Improved, अभी नहीं, improved employee morale and productivity. This will going to improve the morale and productivity of the employees welfare. This is which is the most important part of you can say the employee welfare. Okay, now why it is important from the employees point of view and as far as company's point of view. This one is important, the employees morale and productivity. Only one reason. The reason is that employee always always look for the uh, their future. This is that is their general. In general, every employee look for their future. Every employee wants to secure their what you can say, secure their life, their family, protect their families. Okay, so now the company creating this welfare, providing a service to the creating this welfare, providing just a service to the employees so that they can retain those skillful oriented employees in their organization. Apart from that, if this happen, automatically the productivity of the employees, the productivity of the companies, the turnover, increasing turnover ratio of the employees will get reduced and automatically the production will going to get enhanced. So if for this benefit, okay, every companies try their best to retain the employees, skillful employees, especially with providing best of the best opportunities to them, best of the best welfare to them, and with many more facilities are there, with many maximum facilities are there, they are used to provide to them. ओके, आपको मालूम है रेलवे में एक और चीज इनकॉर्पोरेट हुआ है अभी वेलफेयर में. रेलवे जो वेलफेयर जो है, रेलवे का जो वेलफेयर है, उसमें एक और नया चीज कंफर्म ये हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है. व्हाट इज दैट? You know the fare of Vande Bharat Express? It's really very costly. The middle class Yes. people, find it a little difficult to afford it, as because the fare is very means exclusive fare. If you want to travel from Jamshedpur to Howrah, you need to pay near about 1,000 rupees in general. Every compartment is an AC compartment, but some general facilities are there. Apart from there, some luxurious facilities are also being provided by the Vande Bharat Express. So it's very difficult for a middle class families to afford that price of the ticket. And because for a single journey, 1,000 rupees, okay, it will not going to pinch your pocket. But while you are traveling with your families, say for example, Jamshedpur to Tat, you need to pay near about 3,000, 4,000 rupees you need to pay for the general ticket, AC first class ticket, you need to pay something like that. Okay, apart from that, GST. This is now railway has incorporated another welfare to their employees, railway employees, that they can travel this. Uh, you know that railway employees are been offered with railway passes. They have the facilities of to get pass, railway pass. Okay, compensation pass they have been getting so that they can allow to travel on any train except Rajdhani Express.
except Rajdhani Express. But now that also been incorporated. Now there is another chapter been added and benefit for the railway employees that they can travel with the pass on Vande Bharat Express. Pass holder of railway employees are not allowed to travel. You need to purchase ticket and allowed to travel. But now this facility has been provided only to the railway employees. Okay, they have their pass, they can show their pass, they can avail the ticket, and they can travel. This is the another facilities they are providing. Why they are doing this? Just because the welfare of the employees, so can they can experience the thrill, they can experience the excitement of Vande Bharat Express. Actually Vande Bharat Express is a private train. The manufacturer is RKFL, Ramakrishna Forging Limited. I have already told you earlier, the its body, its every spare part is manufactured in RKFL, Ramakrishna Forging Limited. So it's a private train. Only the driver and the guard is the railway employee. Everything from the caterings to from the food supply, from the everything whatever they are in the train, safai wala and all, everything is what you can say, that is they are private organization. This ruled it has been ruled and maintained by the private organization. I forgot that name of a company who are looking overall Vande Bharat Express. Okay, so now you are traveling from Howrah, Jamshedpur to Tata. Jamshedpur to Howrah just for 3.5 hours or 4 hours. Within a 4 hours of a journey, you are paying lump sum amount of money. Now, say for example, you are traveling from Jamshedpur to Patna. So, how much amount you need to pay to travel on this particular train? So, this being incorporated just to look after the welfare of the railway employees, so that the railway employees are not deprived of the facilities that has been provided by the railway itself. So this is the another one. Okay, then next is enhanced company image and reputation. Obviously, if this thing will going to happen, the company is looking for each and everything. Okay, then what will happen? The company's reputations will grow, the company's image will grow. That will be more productive for the and image growth for the organizations. The next one, better physical and mental health for the employees. They always look for the health, they always look for the better physical facilities, they always look for the health of the employees. Okay, because if the health is okay for the employees, they can work far more better and they can produce more and more productions. Okay, that will going to benefit the companies only. Then the next one is, last one is increased employee loyalty and retention. If the company and organization providing this many more facilities to their employee, the employee will retain there and they are very much loyal towards the organization. They will think of their own home, second home. They will think the company as their second home. They will try their level best to perform as much as is possible, so that they know if the production is good, if the company images will grow, then automatically we will grow. है ना, कि संस्थान अगर कोई ग्रो करता है तो उस संस्थान के हर एक इंसान चपरासी से लेके एग्जीक्यूटिव तक ग्रो करता है. इसीलिए कंपनी के एम्प्लॉइज रिटेन करते हैं और कंपनीज लॉयल रहते हैं. इफ द कंपनी इज प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटीज इन वेलफेयर, देन ओनली, अदरवाइज नो. दिस समझ में आ गया मैम? नेक्स्ट स्लाइड. एम्प्लॉय वेलफेयर इन इंडिया. नाउ दिस इज द थिंग. This is very interesting. You need to understand employee welfare in India. जब डेंटिस्ट वाला आया था ना, तब मैं समझ गया था कि ये थोड़ा सा बाहर का है. I understood. इसलिए मैंने यूएसए का एग्जांपल दिया. I know that डेंटिस्ट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम जहां पर है, वो अमेरिकाज में है. It's in America. They have a dentist. They have a dental problem. That's why वहां का इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, उसके बाद डेंटल फ्री रहता है. As I've told you, they are not looking after their physical fitness and all. Okay, they are very something like that. Okay, now employees welfare in India. Look, क्या लिखा है देखो स्लाइड में. In recent year, India's organization have started giving attention to the welfare. The following facilities are provided in the most organization. In recent year means after the corona period is over, now every organization giving
much more attention to the welfare of every employees. Now, what are they? They are providing educational facility for the workers. Yes, I have told you earlier also when I am discussing the job wages and all that Tata Steel plant in Loyola school, some percentage are of a candidate are been reserved quota, are been kept as a reserve quota for the employees, those who are working in Tata. Apart from that, in hospitals, if you have visit, na, in hospitals you can see some beds, special beds are been are there which you can avail if you are an employee of Tata Steel plant. So this is the facilities they are providing. Apart from that, they have the provision of school. जैसे for example, सैनिक school, you know, सैनिक school, military school, केंद्रीय विद्यालय. Okay, these schools are there, highly reputed school, Kendriya Vidyalaya, Central School. They only allow the students whose fathers are a railway employee. Why? What is the reason behind that? The reason is that every railway employees, whosoever is working in the railway employees, every alternate 2.5 years, they have their transfer from one city to another city. So it's very difficult for them to get admission in the middle of the session in any private school or any government school in the middle of session. So looking after the welfare of the railway employees or employees, government employees, the government has started to add the scheme. And what is the scheme? The scheme is that 5% or 15% of reservation quota is only and only for the employees who are working in government sector. Their kids are allowed to join in any of the session. As same the case with the military school, सैनिक school, केंद्रीय विद्यालय, 30, 35, 40% का reservation रहता है only for the employees who are from military cadets, who are from government employees, and after that remaining अगर कुछ बच जाता है वो 5%, 10% जो कोटा है, it is for general, everybody can join. पहले इनको लिया जाता है, उसके बाद अगर जगह रहा then only they can, you can have. Okay, so these are the facilities, educational facilities provided by the government of India. And apart from that, many reputed, highly reputed companies such as Tata Steel Plant, Tata Cummins, Tata Motors, they have worldwide basis of manufacturing company. This is a worldwide basis industries. So they also incorporate all these facilities to their employees. Okay, as I have told you, now the examples of Loyola School, and another one is Saint Joseph is in Kadama areas only. Saint Joseph School is there. Saint Baptism School is there. So few schools are there which are accord. They have signed a MOU with Tata Steel Plant. Their employees are allowed to join the school. Their kids are allowed to join the school in any of the session, whether it's the beginning, middle, or end of the session, because those their jobs are very much transferable jobs. Okay, that is why they have allowed this scheme. Apart from that, there have a medical facilities are there. Okay, first aid equipments, as I have already told you, some PPE, productive kit are there, which the company allowed to use and company distribute among the employees, and those kits are very highly costly, cost-effective kits are there, very costly kits. Okay, apart from that, if you are 40% disabled, such as you are suffering from leprosy, you are suffering from mental disease, you have a psychological problem, you have a cancer, then only then also they will going to provide you the physical medical facilities. One recent incident that I am going to share it with you. One of the Tata employees family residing in Kadma area only. So I am residing in Kadma, so I know it better. So he is my neighbor. He is working in Tata Steel Plant and he is suffering from stage 2 cancer. And whatever the medical facilities that he is equipped with, every facility is been given by the facilities given by the Tata itself, Tata Steel Plant itself. He has the medical facilities, he has the emergency, whatever the things. Okay, he is getting it free of cost from the Tata Steel Plant. Something to pay only on medicines, something to pay only on medicines. Apart from that, ECG, EEG, whatever the tests are there,
that is free of cost. If you want to get admitted in the hospital for something else, you can have an admission without free of cost, but only for the medicines. That too have a lots of discounts are there, discount facilities are there. Okay, lot of discounts are there. If you're suppose, say for example, if you want to purchase a paracetamol or crocin or whatever the medicine, you need to pay the full. But for especially for the Tata Steel plant, you need to pay the half of it. 50% deduction is there. But one condition, you need to show the pass. You need to show the that you need to prove that you are an employee of permanent employee, not casual employee. I'm talking about the permanent employee. You need to show the permanent employee cards, then only you will be allowed. So this type of facilities have been provided. It's only in Jamshedpur only. Okay, आप अगर टाटा स्टील प्लांट के कोई बाहर वाले चले जाओ तो मैंने वहां जानकारी लिया है, उतना नहीं है उतना नहीं है। फैसिलिटीज वगैरह है, आपको दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वो कोटा सिस्टम में है, आपको पेमेंट करना पड़ता है, ये सब है। लेकिन ओनली इन जमशेदपुर, क्योंकि इन्हीं का शहर है ना, इन्हीं का शहर है, तो ये अपने बंदे को, ये अपने एम्प्लॉयज को इतना सारा देखभाल करते हैं। ओके, सो दिस इज द एम्प्लॉय वेलफेयर इन इंडिया। मैम नेक्स्ट और है शायद, हाँ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये तो आपको मिलता ही है। आप चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आरकेएफएल हुआ, और भी जितने भी स्टील प्लांट आदित्यपुर इंडस्ट्रियल में एरियाज में हुआ, दे आर प्रोवाइडिंग द कैब फैसिलिटी, बस फैसिलिटीज टू देयर एम्प्लॉयज। सिलिकॉन वैली प्रोवाइडिंग बस फैसिलिटीज। कुछ सीमेंट प्लांट्स है गमरिया में, they are providing the bus facilities. So it's convenience allowances में अगर नहीं होता है तो वो पैसे आपको दे दिया जाता है। Okay, recreational facilities to provide to the worker an opportunity to develop a sense of physical and mental discipline in the form of music, dance, drama, games and sports, painting, hobbies and other cultural activities. Apart from that, some recreation clubs are there. आप देखिएगा बहुत सारा recreation club है, बिल्डी क्लब, some many more, some और भी एक क्लब है, बहुत रेपुटेड क्लब्स है, रिच क्लब है। आपको देखने से लगेगा वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है रेलवे का, इतना सुंदर है। ये शायद आप साक्षी की तरफ जाते हुए ना, गोल चक्कर से टाटा रेलवे हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल से आगे एक और गोल चक्कर मिलेगा, वहां से जैसे आप टर्न लोगे ना, वो बिल्डिंग दिखता है। आई फॉरगॉट दैट नेम ऑफ द क्लब। बहुत रिच क्लब है और बहुत हाईली रेपुटेड क्लब। एक और एक क्लब है बंगाल क्लब, इस तरह का क्लब, रिक्रिएशन क्लब बना हुआ है। क्लब फॉर वुमेन है, टाटा स्टील प्लांट के वुमेन यूनिटीज भी है, they are also forming, having some clubs are all there, but nobody allows means casual people are not allowed, or okay, the specific employed working in Tata Steel Plant or any other organization who have some accord with that club, then only they are allowed. And what not in those clubs, you need have a party, you have a kitty party, dance, celebrations, recreations, hobbies, everything. It's a very, very enormous, very, very beautiful place to visit. कितना सुंदर है वो, आप बिल्डी क्लब में देख लीजिए कितना सुंदर है। गोल्फ क्लब देख लीजिए, the people used to play the golf, but condition is that they need to be the employees of this unit. Otherwise, you are not allowed to play the golf in the golf club, which is in opposite of बिल्डी कालीबाड़ी। बिल्डी कालीबाड़ी नाम सुने होंगे, बहुत बड़े काली मंदिर है वहां पर, ठीक है, उसके ऑपोजिट में गोल्फ क्लब है जहां पर ये फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत सारा है, आप अगर थोड़े से देखोगे, पता नहीं है आपको, हो सकता है ये सब चीजें आप देखिएगा, यू विल फाइंड सरप्राइज कि क्या फैसिलिटीज देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउसिंग फैसिलिटीज, ये तो मैंने पहले भी बता चुका हूं। कदमा में जितना एरियाज है, फार्म एरियाज में जितने भी क्वार्टर है, ऑल आर फ्रॉम द Tata Steel Plant quarter. They are providing the facilities, housing, rent facilities, electricity charges, Tisco का electricity charges, they are charging minimum balance. उनका टैरिफ रेट क्या है, आप चौक जाओ, 3.25 पैसा। It is because it is for the Tata employees only, Tisco employees only, not for others and not for everyone. Okay. उसके बाद कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पर आपको दुकानें मिलेंगे, फूड ग्रेन्स मिलेंगे रिजनेबल प्राइस में। ये मैंने देखा है बीएसएफ में। I was basically from Calcutta, so the place where I am residing now, we are having a BSF big camp over there. A BSF quarter is there, police line quarters are there. Okay, तो क्या है उनके अंदर, आप उस पुलिस लाइन क्वार्टर के अंदर चले जाइएगा, बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है,
It's a big mall, shopping center is there. Okay, where you can avail the food grains, whatever the products you want, food products you want, whatever the any products you can get it from there with a reasonable price. But especially there is a condition, they only provide the reasonable prices to the employees of BSF only. But if you, as a being a normal people, if you are going and visit there, na, they will price the same price as it is written on the packet. No discount for you, only for those employees. तो ये सब फैसिलिटीज टाइम टू टाइम कंपनीज अपने करवाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कदमा एयरपोर्ट की तरफ आएंगे ना, तो देखिएगा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्वार्टर्स है. लाइफ इंश्योरेंस क्वार्टर एयरपोर्ट से जैसे ही आप आ रहे हो, आपको एकदम लेफ्ट कॉर्नर एक देखिएगा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्वार्टर इज देयर. ओके, आप कभी गए हो कि नहीं मुझे पता नहीं. तो इंश्योरेंस क्वार्टर इज देयर, लाइफ इंश्योरेंस क्वार्टर. तो आप कभी लाइफ इंश्योरेंस क्वार्टर में चले जाएगा. जो भी अच्छे पोस्ट में काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, उनका वो क्वार्टर बना हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा दुकान है, शॉपिंग मतलब शॉपिंग सेंटर जिसे कहते हैं, जस्ट लाइक आवर आरबी, जस्ट लाइक एनी अदर कॉलेजेस हैविंग. तो वो शॉपिंग सेंटर में क्या है, आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, आपको सब कुछ मिलेगा, चावल दाल गुड़ चावल सब कुछ, यू कैन गेट इट. बट you need to pay full amount, but only for the insurance, insurance for the means only for the employee of insurance working in a life insurance, they are allowed with a reasonable price. बहुत सारा discount रहता है. So these are the employees of you can say welfare in India. और कुछ है मैम? नेक्स्ट स्लाइड. एम्प्लॉय वेलफेयर इन इंडिया, ये क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रेगुलेट एम्प्लॉय वेलफेयर थ्रू वेरियस लॉज एंड स्कीम. अच्छा, दिस स्लाइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दिस स्लाइड तनुजा अगर तुम सुन रही हो, एंड अभिजीत इफ यू आर लिसनिंग टू मी, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल सेज व्हाट इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948, what is the social security act 2008, what is PM Sharma Yogi Mandhan Aam Aadmi Bima Yojana, National Child Labor Project, what are this? It will going to come to your examination. It's a very important slide. Employee welfare in India, which has been run and regulated by the government of India. Lot of regulatory bodies are there, through various laws and scheme are there. जैसे फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 which provide a guideline for the workplace safety, health and welfare and welfare. तो in which act, MCQ आ सकता है इस क्वेश्चन में, in which factory act we see that government is providing the workplace with safety, health and welfare? Your answer must be Factories Act 1948. इसमें लिखा है that, और गाइडलाइन दिया हुआ है कि जहां भी आप काम करो, the priority should be given to the employees. There must not be compromise on safety, health and welfare. उसके बाद है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी, जिसका ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब उतना रिकॉग्निशन नहीं है गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर जिसे हम कहते हैं, उनका 2008 सोशल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें लिखा हुआ है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हु आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड. से फॉर एग्जांपल बहुत ऐसे छोटा मोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है. आदित्यपुर स्टील प्लांट में आप जाइएगा, आप एमबीए के स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं, ये सब चीज को एक्सप्लोर करो. यू कैन, आप देखिएगा ये सब चीजें आप लिख पाओगे. मुझे इतना, अब आप बोलोगे सर आपको इतना कैसे जानकारी हो गया? आई ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल दिस थिंग्स. I try to explore all these things. That's why I can relate all sudden examples of this. मैं तुरंत एग्जाम्पल दे सकता हूँ इस सबका. Why? बहुत कुछ इसका मतलब देखता हूं मैं. I vision all these things. उसके बाद मैं पढ़ता हूँ. That is why I can give you such an examples of this. और वो examples देखिएगा particularly relate करेगा. For example, 2008 जो unorganized worker है, who are the unorganized worker? आप अगर आदित्यपुर स्टील प्लांट के एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओगे, ओके, वहां पर ना देखिएगा प्लॉट डिवाइड किया हुआ है. सेक्टर ए, प्लॉट 23, सेक्टर बी, ये सब कंपनी कहां है आपको उससे पता चल जाएगा. तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब एक छोटा सा लेद मशीन जहां कटिंग हो रहा है। अब दो कंपनी तो आईएसओ सर्टिफाइड लिख देता है अपना, लेकिन एम्प्लॉइज जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉय है, उसका क्या फ्यूचर है, व्हाट इज द फ्यूचर एंड व्हाट इज द बेनिफिट ही इज हैविंग, ओनली द सैलरी। बट अभी ऑर्गेनाइजेशंस को ये स्ट्रिक्टली इंफॉर्मेशन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप अपना कंपनीज को सबसे पहले 2008 एक्ट के अंडर में रजिस्टर करवाना इज कंपलसरी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दोज एम्प्लॉयज हु आर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर और एम्प्लॉय, you need to provide them the security first, safety first, then only he will allow to work। अगर ये नहीं करवाते हैं तो दिक्कत हो जाता है। देखिएगा, कंपनी का कुछ नाम नहीं है, इस तरह का कंपनी का कुछ नाम नहीं है, एक गवर्नमेंट का ना कुछ कागज चिपका हुआ है, स्टैम्प किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, उसने अपना मतलब उसने गवर्नमेंट पोर्टल में जाके अपने कंपनी को रजिस्टर करवाया, और रजिस्टर करवाने का मतलब है he need to provide, the company need to provide every facilities that is been mentioned in article 2008। वो जितने भी आर्टिकल्स 2008 में मेंशन्ड है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉय, वो आपको देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा स्कीम है, जैसे पीएम शर्म योगी मनधन। योगी मनधन इज एन व्हाट इज दैट, मींस some lump sum amount is been, some minimum amount is been deducted from your balance, and at the end of, before the retirement or at the end of the your job, सुपर एनिमेशन जिसे हम कहते हैं, रिटायरमेंट को एक और वर्ड में सुपर एनिमेशन कहते हैं, at the time of your super annuation you can get a very good amount of that। apart from that, आम आदमी बीमा योजना for every single human being। मंत्री जी अभी ना अमेरिका वाला पॉलिसीज यहाँ पर ला रहे हैं। अमेरिका में मैंने आपसे कहा था, बिफोर वर्किंग देयर, व्हाटएवर वेरेवर यू आर वर्किंग, चाहे आप शॉपिंग मॉल में छोटा मोटा काम कर रहे हो, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज द सेफ्टी। इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता अमेरिकन गवर्नमेंट। ओके, आपका इंश्योरेंस, मेडिकल, डेंटिस्ट क्लेम सब कुछ रहेगा। बीइंग अ स्मॉल एम्प्लॉय, छोटा से छोटा एम्प्लॉय को भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। और वही स्कीम नरेंद्र मोदी जी भी लाए हैं, आम आदमी बीमा योजना। एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एक अननोन अनऑर्गेनाइज्ड परिजय श्रमिक हो जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उनका भी बीमा योजना कराना कंपनी के माध्यम से कंपलसरी है। अगर ही इज फेल्ड टू मींस टू सबमिट द प्रीमियम, द कंपनी हैज टू पे फॉर दैट। अगर उसका सैलरी 15,000 से नीचे है, से फॉर एग्जांपल 10,000 तक है, तो कंपनी उसका जो प्रीमियम बनता है वो कंपनी पेड करेगी। अंडरस्टूड? अपार्ट फ्रॉम दैट, नेशनल चाइल्ड प्रोजेक्ट, लेबर प्रोजेक्ट, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिएगा चाय के टपड़ी पे काम करते हैं, उनका कुछ प्रोजेक्ट्स है। क्या प्रोजेक्ट है? दैट एवरी चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड फर्स्ट। उनको सबसे पहले शिक्षित करना पड़ेगा। अगर 18 साल के नीचे कोई बच्चा काम करते हुए पकड़ा गया तो चाइल्ड लॉ एक्ट की तरह जहां पर काम कर रहा है उस दुकान को सील कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट का ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, और इसका रिजल्ट आप उत्तर प्रदेश योगी सरकार के अंडर में देखिएगा। अरे बाप रे बाप, सो स्ट्रिक्ट। ऐसा राम मंदिर जो ये एज वी आर गोइंग टुवर्ड्स उत्तर प्रदेश, तो वहां पर चाइल्ड लेबर एक्ट इतना स्ट्रिक्ट से पालन होता है कि नेवर एवर एट एनी कॉर्नर यू कैन फाइंड एनी सिंगल चाइल्ड इज डूइंग वर्क। ओके, जो भी काम कर रहे हैं, दे आर ऑल क्रॉस्ड 18+। ओके, दिस इज द थिंग। सो दीज आर द एम्प्लॉयज वेलफेयर इन इंडिया। समझ में आ गया? Is it clear to you? Yes. Next slide. क्या हुआ? Wait. 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करो। हाँ बोलो। सर कल मुझे प्रोफेशनल का एग्जाम है ना, उसको थोड़ा पूछना था। क्या पूछना है बोलो। सर जो पीडीएफ आप दिए 99 पेजेस का, उसमें सर सारा टॉपिक पढ़ना है कि कुछ टॉपिक्स? मैंने कुछ टॉपिक जो सिलेक्ट करके दिया है ना, जैसे रेजिलिएंट, उसके बाद आपका हो गया नॉन कॉग्निटिव स्किल, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब स्पेसिफिक है, इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेज्यूमे, जॉब, ये वाला पढ़ लेना।
बहुत इंपॉर्टेंट। सारा नहीं पढ़ना है। सारा काहे पड़ेगा, सारा पढ़ेगा। अच्छा एक और चीज मैंने करवाया था ना तुम लोगों को टॉपिक में, प्रैक्टिकल में, प्रेजेंटेशन स्किल, हाँ उसको बढ़िया से पढ़ना जो क्लास में कराए वो सब है, बस वही तो पढ़ना है। और यार वही सब बस 89 पेजेस का पीडीएफ बुक क्या है, दैट इज अ सिलेबस। आपको पूरा मॉड्यूल, वो मॉड्यूल है, तो उसमें सिलेक्टेड टॉपिक सब क्लास में दे दिए थे ना, पूरा नोट्स तक दे दिए थे, तो ले लो ना, से भी ले लेंगे। इसी से क्या है, नेहा से ले लो, बी बाला, मैं नाम स्पेसिफिक बता दे रहा हूँ। उसके बाद एक और है ना, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, अरे ये सामने ही बैठता है लंबा सा, क्या भूल जा रहा हूँ, अमित गुराई करके है, उससे ले लेना। ये वाला लोग के पास हाँ एकदम पूरा, ठीक है। ओके ओके, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, व्हाट इज दिस फैक्ट्रीज एक्ट 1948? अब थोड़ा सा इसको विस्तार रूप से बताते हैं क्या है। इन द फर्स्ट हाफ तो ये लिखा था, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरीज, अच्छा ये थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, देखो क्या लिखा है, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी लार्ज फैक्ट्रीज इंडस्ट्री इमर्ज्ड इन इंडिया। In the report 1872-73, Major Moore, the chief inspector of cotton department in Mumbai, first raised the issue of introducing legislation regulating working condition in factories. The first formation of Factories Act 1948 was initiated in 1881. Since then, the Factory Act 1947 has been modified and amended multiple times. ठीक है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री, बहुत सुंदर हिस्ट्री है। देखो 19th सेंचुरीज में बहुत सारा लार्ज फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो है वो इमर्ज हो गया था। इमर्ज मतलब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ओके, नाउ एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ड्यूरिंग द ईयर 1872-73 में मेजर मोर, MWRE, किरण मोरे, नाम सुने हो, इंडियन क्रिकेटर, दैट इज द टाइटल, मेजर मोरे, इट्स नॉट मोरे, MWRE, द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द कॉटन डिपार्टमेंट इन मुंबई। पहला जो व्यक्ति जो इस विषय में अपना बात उठाया था वो है इंस्पेक्टर और मेजर मोरे, द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द कॉटन डिपार्टमेंट इन मुंबई, जो ये इश्यूज रेज किया था कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज है इसको आप लेजिस्लेशन में डालिए, लेजिस्लेशन का मतलब अमेंडमेंट में डालिए, रूल में लाइए, अदरवाइज कंपनी अपना मनमानी करेगा, कंपनी लेबर को सताएगा, टाइम टू टाइम सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाएगा, एम्प्लॉयज को दिक्कत होगा। जैसे आप जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, पहले जब कोल फील्ड था ना, जैसे बॉक्सर हुआ, बोकारो कोल फील्ड हुआ, धनबाद कोल फील्ड हुआ, कभी आप इस चीज के बारे में ना थोड़ा सा पढ़िएगा, इनका हिस्ट्री को पढ़िएगा, दैट हाउ द लेबर्स कमिट सुसाइड because their supervisors or because the senior managers or the owner of the coal mines, they are not paying. पहले क्या था, वो कोल माइन का कोई तो ऐसा वारिस नहीं था, तो क्या करते थे, कोई भी आके अपना हक जमा लेते थे, और हक जमाने के बाद थोड़ा सा दादागिरी, गुंडागर्दी और अपना ये सबसे ना कब्जा कर लेते थे, और उसके बाद अपना ही मनमानी चलाते थे। इस तरह से बहुत सालों तक चला। इसके ऊपर एक फिल्म तक बना है पुराने में, ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन पर फिल्म बना। द फिल्म इज रियली वेरी गुड, कि हाउ, देखो किस तरह से एम्प्लॉयज को डिप्लॉय करते हैं कि वो रिस्क, अपना जान में रिस्क लेकर, मतलब सॉरी, जान हथेली पे लेके रिस्कली वर्क करे, और ऊपर से कैसे वो मतलब सरवाइव करते हैं। ना उनके लिए कोई प्रॉपर वाटर है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज है, ना कोई गुड टूल्स है, इक्विपमेंट्स पुराने हैं, उसी में उनको रहना है, कीड़े मकोड़े की तरह। आप वो फिल्म देखोगे ना तो आपको ये सारा सीन पता चल जाएगा, क्यों मोरे भाई साहब ने इतना आवाज उठाया था। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने आया, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन 1948 में इसको अमेंडमेंट लाने के बाद जितने भी इलीगल माइनिंग्स था वो टोटल बंद हो गया। अभी भी देखिएगा, जब झारखंड में माइनिंग्स का जो कॉन्ट्रैक्ट आता है ना, वो गवर्नमेंट टेंडर बुलाते हैं, टेंडर बुला के पर्सनल स्पेसिफिक इंसान को देते हैं, और गवर्नमेंट उससे टैक्स वसूल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी नेसेसरी चीजें हैं वो फॉलो करना पड़ता है। अगर पता चला कि ये ठीक ठाक काम नहीं कर रहा, नेक्स्ट से टेंडर हटा दिया जाएगा, उनको दिया ही नहीं जाएगा, रिन्यू नहीं करेगा। लोग अभी सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन पहले ऐसा था, एम्प्लॉयज जो है ना वो कीड़े मकोड़े समझे जाते थे कि जान की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ चेंजेस हो गया। तो बिकॉज ऑफ दिस मोरे भाई साहब ना,
ये चेंजेस आया है। इसको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। एम आई क्लियर तनुजा? इसको पढ़िए। yes, ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, the compliance of the Factories Act 1948. The Factories Act of 1948 is a crucial legislation that regulates labor in factories, ensuring the health, safety and welfare of the workers. जो मैंने पहले बताया था, पिछले का पिछला स्लाइड, सेम चीज यहाँ है. What is Article 1948 और what is Factories Act 1948? Simply लिखना ensuring health, safety and welfare of the workers. नाउ लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ये कैसे होता है? एक कंपनी को लाइसेंस कैसे लेना पड़ता है? ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज एज पर सेक्शन 6 ऑफ एक्ट. ये सब सेक्शंस याद रखना. लाइसेंसिंग आप किस सेक्शंस के आधार पर पाएंगे? रिमेंबर वन थिंग, सो लाइसेंस सेक्शन 6 एक्ट, इसके माध्यम से आपको लाइसेंस, जो चीफ इंस्पेक्टर है फैक्ट्रीज का, they will going to send a notice 15 days prior to occupy a factory as per section 7, including name, address, occupies factory premises, owner, factory detail, name of the manufacturing process, town horsepower and number of workers. अगर लाइसेंस आपको लेना है तो लाइसेंस का प्रोसीजर ये होता था. फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्शन में आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे. After that, according to section 6, section 7, आपको अप्लाई करना पड़ेगा. During the apply, you need to mention these points: your name, address, the owner of the factory, premise कहाँ पर है, that is the location, what is the details, क्या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बहुत सारा पॉइंट है. अब और वो लाइसेंस का पेपर आप पढ़ोगे, lot of points are there, you need to fill up those points. Okay, so उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको लीगल हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चोरी चकारी तो करता ही है ना आदमी, जितना है उतना दिखाना पड़ता है. लेकिन जब इंस्पेक्शन टीम आता है और उनको मिलता है कि ये जितना भी यहाँ पर लिखा गया है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, उसका लाइसेंस फिर रद्द हो किया जाता है. ठीक है, इस तरह से लाइसेंस फिर कैंसिल हो जाता है. ये लाइसेंस फॉर्म भरने के बाद तुरंत लाइसेंस नहीं मिलता है. लाइसेंस नहीं मिलता है. क्या होता है कि फिर लाइसेंस इंस्पेक्टर आते हैं प्रैक्टिस का जायजा लेने के लिए. प्रैक्टिस का जायजा लेते वक्त अगर वो जो मेंशन किया हुआ है पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मांगा गया है और जो पॉइंट मेंशन किया गया है, अगर वो मैच नहीं हो रहा है और कहीं पर भी उनको लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, तो वो लाइसेंस कैंसिल कर देते, वो लाइसेंस देते नहीं. लेकिन इंडिया है, कुछ कुछ धांधलीबाजी तो डेफिनेटली होता है. ब्राइब्स केसेस वगैरह तो आप जानते हो कैसे होता है. तो पैसा खिला के बहुत सारा कुछ करके वो फिर लाइसेंस अपना ले लेते हैं. ओके, तो ये है फैक्ट्रीज एक्ट 1948. नेक्स्ट स्लाइड. फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में एक और प्रोविजन है, दैट इज हो तो गया. हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में एक और प्रोविजन है. व्हाट इज द प्रोविजन? दैट इज द हेल्थ प्रोविजन. व्हाट इज दैट? क्लीनलीनेस. देखो क्या क्या है, रेगुलर क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस, वेस्ट डिस्पोजल. ओके, उसके बाद प्रॉपर वेंटिलेशन, टेम्परेचर, एडिक्वेट वेंटिलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल. कल मैंने ये सब कुछ आपको बताया था. टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए तो कंपनी में एसी नहीं लगाया जाता, तो टॉप रूफ में वो एक गोल सा, देखिएगा फैक्ट्री आप विजिट कीजिए, वो हर समय घूमते रहते हैं. उसका काम क्या होता है, इनसाइड फैक्ट्रीज में जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको वो खींच के बाहर निकाल देते हैं. दैट इज द वर्क. इज जस्ट लाइक हम लोग का जो एग्जॉस्ट फैन है ना किचन में लगा हुआ है, वो एग्जॉस्ट फैन का काम करते हैं, टेम्परेचर को बाहर निकालना. उसके बाद डस्ट एंड फ्यूम, इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन. डस्ट, आप इसका क्या आप कर रहे हो. उसके बाद है artificial humidification. What is that? Purified water. Okay, purified water during the time of a humid hot season. What are the ways to your what are the water means cabin, whether you have prepared the water cabins, whether you have assembled filters or not, these are all been checked. Purifier, purit आप लगाए हो कि नहीं, water supply connections कैसा है, these are. Then overcrowding. देखिए फैक्ट्रीज एक ऐसा प्लेस है जो कि बहुत सेंसिटिव है, तो इस सेंसिटिव में ओवरक्राउडिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद प्लांटेशंस, आप कितना प्लांट लगा रहे हो,
एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, ओके वो सब देखा जाता है। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लाइटिंग्स है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज है कि नहीं, कैंटीन फैसिलिटीज है कि नहीं, इफ द कैंटीन फैसिलिटी इज देयर, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज बीन अवेलेबल, क्वालिटी ऑफ फूड दे आर बीन चेक। ओके कभी फैक्ट्री में तनुजा खाई हो, ये जो आप इंटर्नशिप की हो, कभी फैक्ट्रीज में खाना वाना खाना हुआ? नो सर, मेरा तो ऑफिस में रहता है। अरे यार कभी कैंटीन में जाके खाना तक नहीं खाया? हाँ, कैंटीन में खाए थे, 2 दिन खाए थे। तो किस तरह का क्वालिटी इसका फूड देता है बताओ वहां पर? दाल चावल सब्जी, आलू की सब्जी? नहीं सर, दाल चावल, पनीर का सब्जी, काबुली चना का सब्जी, केला, हाँ दही। क्या, हाँ क्या बोला, क्या चना का सब, क्या चना का सब्जी? काबुली चना का। हाँ तो लुक द कॉस्टली फूड, द कॉस्टली आइटम्स वो सप्लाई करते हैं। रायता दिया था, ओके ओके। उसके बाद आप तो स्टील प्लांट पे जाओगे तो वहां मीठा भी प्रोवाइड किया जाता है। कितना पैसा लिया था? सर पैसा तो नहीं दिए थे हम लोग। हाँ नहीं दिए थे, इसका मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ कहाँ होता है कि मिनिमम कुछ पेमेंट करना पड़ता है, 5 रुपया 10 रुपया देना पड़ता है, लेकिन वो लंच जो है आपको देगा फुल, मतलब पैकेट ऑफ लंच। वो 10 रुपए का लंच नहीं होता, नियर अबाउट 60-70 रुपीज का होता है, लेकिन आपसे 10 रुपया चार्ज करते हैं। Okay, so this type of facilities have been provided, or this is all because of Factories Act 1940. ये according to the Factories Act ही ये होता है। Next, अच्छा, Factories Act 1948 में एक और प्रोविजन है, वर्किंग आवर्स एंड लीव। वर्किंग आवर्स कितना है और लीव प्रोसीड्योर क्या है? पहला, क्लीनिनेस, रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेशन, ये तो हो गया है, पहला ही पॉइंट है, रिपीट हो गया। वर्किंग आवर्स देखो लिखा है, मैक्सिमम 9 आवर्स पर डे एंड 48 आवर्स पर वीक फॉर एडल्ट्स। जो प्राप्त वयस्क है, प्राप्त एज है, दे आर कॉल्ड द एडल्ट्स, उनके लिए मैक्सिमम 9 आवर्स पर डे एंड 48 आवर्स पर वीक। 9 आवर्स में 1 आवर का लंच रहता है, क्योंकि 7 दिन होता है ना फैक्ट्री से, 8 7 56 होता है, मतलब मिनिमम 7 आवर्स या 2-3 घंटा का लंच रहता है शायद। 7 7 48, यस 6.9 या 7 आपका वर्किंग आवर्स रहता है। 2 आवर्स का, सॉरी नॉट 1 आवर्स, 2 आवर्स का लंच होता है, 1 से 3 बजे तक होता है, उसके बाद 3 से फिर काम होता है। ओवर टाइम पेमेंट, ये मैंने बहुत पहले आपको बताया था, देखिए यहां पर लिखा हुआ, पेमेंट फॉर वर्क डन बियॉन्ड रेगुलर आवर्स। रेगुलर आवर्स में आपको, अगर आप रेगुलर आवर्स में काम कर रहे हो, ओवर पे फॉर दैट आपको देना पड़ेगा। एनुअल लीव देखो, मिनिमम 1 डे ऑफ पर वीक एंड एनुअल लीव एंड वेजेस। हफ्ते में एक आपको छुट्टी, सीएल कैजुअल लीव आप ले सकते हो। पर वीक, हफ्ते में एक छुट्टी आप ले सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट वो एनुअल लीव्स कितना होगा और वेजेस उसके अकॉर्डिंग कैसा होगा, ये कैलकुलेट करके देता है। तो ये सारा फैसिलिटीज जो होता है फैक्टरीज एक्ट 1948 में लिखा गया है। नेक्स्ट, अच्छा, वेलफेयर प्रोविजंस क्या क्या है? कैंटीन्स, वो तो हो गया, हेल्थ हो गया, उसके बाद लीव्स हो गया, लीव हो गया। अब आ जाते हैं एक और वेलफेयर प्रोविजन, कैंटीन्स। प्रोविजन ऑफ कैंटीन फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए कैंटीन रहता है। रेस्ट रूम, एडिक्वेट रेस्ट रूम एंड स्पेस फॉर रेस्टिंग रहता है। फर्स्ट एड, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किट्स, एड किट्स एंड मेडिकल फैसिलिटी। मैं बार बार पढ़ा रहा हूं, आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, ये सब कुछ रहता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन चिल्ड्रन, इनके लिए क्या है? देखो, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड को आप काम नहीं करवा सकते। नो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स। अच्छा, 18 ईयर्स से बिलो 14 ईयर्स लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली 18 ईयर्स था न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से, तो वो आप काम नहीं करवा पाओगे। रूल्स फॉर वुमेन वर्क, नो एम्प्लॉयमेंट इन हजार्डस और स्ट्रेनस वर्क, जहां पर बहुत हजार्डस, हजार्डस का मतलब एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज, जहां पर एक्सीडेंट का चांसेस ज्यादा है, और जहां पर स्ट्रेसफुल वर्क है, वहां पर महिलाओं को अनुमति नहीं दिया जाता है काम करने के लिए। They are not allowed because women are very sensitive, na? After all, they will get panic if they see something hazardous. Okay, तो उनके लिए थोड़ा सा
दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उनको अलाउ नहीं करते हजार्डस या फिर एक्सीडेंट एरियाज में, जहां एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, सेंसिटिव एरियाज है, वहां काम करने नहीं देते। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन एंड पेनल्टीज। क्या क्या पेनल्टीज है देखो। रेगुलर इंस्पेक्शन, ये 1948 के अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज आर सब्जेक्टेड टू रेगुलर इंस्पेक्शन बाय द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स। ये एक्चुअली होता नहीं है, रेगुलर इंस्पेक्शंस तो होता नहीं है, हफ्ते में या महीने में, 2 महीने में एक बार किया जाता है। पेनल्टीज, मॉनेटरी फाइन अप टू 1 लाख, इम्प्रिजनमेंट और बोथ फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज करते हुए इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया तो 1 लाख रुपीज ऑफ फाइन, अपार्ट फ्रॉम दैट इम्प्रिजनमेंट, कितने सालों तक, 2 साल या 2.5 साल 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सीवियर केसेस हुआ तो फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। हमें क्लियर, आप वो फैक्ट्री और नहीं चला पाओगे, वो फैक्ट्री फिर ट्रांसफर हो जाता है दूसरे फैक्ट्री, दूसरे किसी को नीलाम कर दिया जाता है, बोली लगाया जाता है, उसको नीलाम करके बिकवा दिया जाता है। ठीक है, अगर सीवियर कुछ हुआ, जैसे चाइल्ड अब्यूजिव, वुमेन के साथ कुछ ऐसा गलत सलत इस तरह से होता है, हर एक जगह सिमिलर नहीं है, तो तब ना ये केसेस जब प्रूफ हो जाता है कि हाँ इस वुमेन के साथ यहाँ पर नाइंसाफी हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तब कोर्ट ऑफ लॉ लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, फैक्ट्रीज बंद करवा देते हैं, यहां तक उसको तो जेल हो ही गया, वो फैक्ट्रीज को नीलाम करवा देते हैं ताकि वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना स्ट्रिक्ट रूल है तनुजा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, नॉट एन इजी। अगर कुछ ऐसा मिलता जुलता मिल गया तो इस तरह का पनिशमेंट, वो तो जेल चला गया, तो क्या जो एम्प्लॉयज है वो क्या भूखा मरेगा? नहीं, तुरंत उसका ये बुला के नीलामी करवा दिया जाता है और उसके बाद फैक्ट्री दूसरे दिन से फिर चालू, दूसरे हाथ में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, दिस आर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर पॉलिसीज? क्या क्या है, जैसे देखो सिक लीव पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ केयर पॉलिसी है, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज, एम्प्लॉय वेलनेस पॉलिसीज, चाइल्ड केयर पॉलिसी, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। इसमें से सिक लीव पॉलिसी आप जानते हो, आपको पहले पिछले स्लाइड में बताया गया था, 9 आवर्स का होता है, हफ्ते में एक छुट्टी आप ले सकते हो, पूरा 48 आवर्स का, पूरा वीक का 48 आवर्स का ही ड्यूटी होगा, अगर ओवर टाइम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। इंश्योरेंस पॉलिसीज, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको कंपनी प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्थ केयर पॉलिसी, मेडिकल है, कंपनीज आपको प्रोवाइड करेंगे। स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज, एम्प्लॉयज को स्किल डेवलप करने के लिए, नए नए ट्रेनिंग्स दिलवाने के लिए बाहर भेजते हैं। वेलनेस पॉलिसीज, कैंटीन, फ्रेश वाटर, गुड एनवायरनमेंट, ओके, रिक्रिएशन रूम, रेस्ट रूम प्रोवाइड किया जाता है। दिस आर ऑल वेलनेस। चाइल्ड केयर पॉलिसीज मींस द चिल्ड्रन हु आर बिलो 14 years of an age, they are not allowed to work in the premises of factories. Apart from that, their education facilities, पहले स्लाइड में पढ़ाया था, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाया जाता है, उनको रियम्बर्समेंट किया जाता है, पैसा वापस किया जाता है ताकि वो कॉलेज स्कूल में भर्ती हो सके। ओके, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट पॉलिसीज, रोटेशनल शिफ्ट, हर एक ही शिफ्ट में काम करते करते हो सकता है आपका काम थक जाता है क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल वर्क है, तो रोटेशनल, आज मॉर्निंग है, कल इवनिंग है, परसों नाइट है, इस तरह से करने से क्या होता है, एनहांस्ड रहता है, एक चार्मिंग रहता है, आपका जो एनर्जी है वो रिस्टोर होते रहता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेलफेयर पॉलिसीज। नेक्स्ट, so here we comes to the end of this beautiful slides, beautiful, why I am saying this beautiful, बहुत कुछ जानकारी हमें भी प्राप्त हुआ, मुझे पता नहीं था कि कौन सा फैक्ट्रीज का कौन सा एक्ट में ये सब होता है, तो नॉलेज कहीं से भी मिलना अगर मिलता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आई डोंट नो द पॉलिसीज ऑफ फैक्ट्री पॉलिसीज होता है, आई नो दैट, बट आई डोंट नो द पॉलिसीज विच एक्ट, किस एक्ट के अंदर में ये आता है। तो ये स्लाइड पढ़ने की वजह से आज मुझे पता चला सेक्शन सी क्या है, सेक्शन 7 क्या है, 1948 फैक्ट्रीज एक्ट क्या है, उसके अंदर में क्या क्या आता है। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। खाने का टाइम तो हो गया, दाल चावल। सर खा रही हूँ। अरे क्या बात है, चलो ठीक है मैम, हम लोग फिर क्या करें, शाम को